Now, for the last session, I would like to invite Professor of Medicine, Gastroenterology and Hepatology, Dr. Javed Iqbal Farooqi, to deliver his talk on how to keep a cirrhotic patient alive without liver transplant. Well, that's good. Thank you for inviting me to this very important topic. Because I may be going quick in the slides. The reason is कि 12-15 पे ख़त्म करना था और 12-15 पे मैं शुरू कर रहा हूँ. तो but anyhow ये होता है. ये जो टॉपिक मुझे मिला है, this is something कि very close to my heart. और अमूमन इस पे मैं क्रॉस पाकिस्तान में काफ़ी वर्कशॉप्स कर चुका हूँ. It's for one day activity. One day तो नहीं है, I'll try कि within मुझे टाइमर बता रहे हैं 28 minutes. I'll try कि within 20 minutes खत्म कर लूँ. By the way, how many TMOs from medicine? Raise your hands. Great. House officers? Any general practitioners? No. And consultants, of course. ये उस्मान भाई जब ये टॉक मिल गया तो मैंने कहा चलो मैं अपने, क्योंकि मेरा तमाम बेटा उस पे होता है, नेट पे कंप्यूटर पे होता है, मैंने कहा अपने केसेस देख लूँगा, एनी केसेस की जिनको हम फॉलो कर रहे हैं जिसका लिवर ट्रांसप्लांट के बगैर हो, एंड कभी कभार अल्लाह ताला आपको हेल्प आउट कर देगा. इसी ट्यूसडे आई गेट दिस पेशेंट फर्स्ट टाइम. क्यों मैं इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ? 1990 he presented to LRH as decompensated liver cirrhosis because of hepatitis B with plaque. 1990. मैं उसके रिकॉर्ड देख रहा था. अलफ खान साहब, नवाज भाई, परवेज साहब, सादिक शाह साहब एसोसिएट प्रोफेसर एट दैट वेरी टाइम, परवेज साहब असिस्टेंट प्रोफेसर, और अपने मसूद रहमान साहब सीनियर रजिस्ट्रार जिसको हम अवार्ड देने जा रहे हैं. यू कैन सी दिस इज 1991. अगेन उसकी एडमिशन हो रही है ब्लीड के साथ. आगे जाए तो अगेन ये मेरे रिकॉर्ड जब देख रहा था व्हेन आई वाज डूइंग माय सेकंड फेलोशिप इन गेस्ट्रो इन 1998-99, तो फिर भी आया और हमने उसको देखा, उसकी जो है एंडोस्कोपी की, कोएगुलेशन की, बेंडिंग की, और इनकी मेरा साइन है और हम, and he was being told me at that time as well जब मैं second fellowship कर रहा था, then in 1990 as well. और ये जब मेरे पास आया, this was on this Tuesday, and now he presented with ascites. Lessons learned. 1990 में present किया decompensated cirrhosis. और स्टडीज बोलते हैं कि जब decompensated cirrhosis हो, जो compensated में life expectancy is 12 years, decompensated 2 years. तो 35 years passed. He is a decompensated liver cirrhosis. Time to time आता है, उसको ट्रबल शूटिंग होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग. तकरीबन मैं जो रिकॉर्ड देख रहा था, more than 50 times उसकी एंडोस्कोपी हुई है, सर्वेलेंस एंडोस्कोपीज, इमरजेंसी एंडोस्कोपीज, और इन टाइम ट्रबल शूटिंग. And he is from Sarai. And this is a very good example. No liver transplant, 35 साल गुजारे, अभी भी in very good shape. You can see. ये परसों की तस्वीर है. तो मैंने कहीं मौका मिल गया, I'll just share with my friends this one. Okay, transformation from normal liver into cirrhotic liver, you know, it's a progressive fibrosis and scarring which replace the liver, portal hypertension बनती है, complications होती है. We know the normal anatomy and physiology अपने ज़हन में रखिएगा. Acute inflammation होती है because of viral causes. कोई टाइम नहीं है कि मैं तमाम causes दिया हूँ, hepatitis B, C, hepatitis D, immunocompromised hepatitis E, या non-viral causes, hemochromatosis, Wilson, Activin, so many. We all know that. होता क्या है कि chronic phase में जाता है, we know that then there is an element of fibrosis.
और नॉर्मल लीवर को वो फैब्रोटिक लीवर में कन्वर्ट करता है और हम ग्रेड करते हैं F0 नो फैब्रोसिस, F1, F2, F3 है। वो जब स्टेज 4 फैब्रोसिस बनती है तो लीवर समझता है कि यार मेरी तो जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो मेरी सिंथेटिक एक्टिविटी है वो एट फॉल्ट हो गई, इट स्टार्ट्स रीजनरेटिंग। तो मैथमेटिकली F4 fibrosis plus regenerate nodule is equal to cirrhosis. We all know that. Altered anatomy, altered physiology. We know it's a lifelong disease. Thank you. Actually, this is because of the fixate. We know it's a gradually worsening, and it has got associated with a lot of complication, and it is a lethal disease. हमें ये भी पता है कि हम जब डायग्नोज करेंगे अगर क्लिनिकल फीचर्स हो गए, यू नो दैट जितने भी पैराप्लास्टिगमेटा वगैरह है वो नमो तो भी रिलाई ऑन द अल्ट्रासाउंड। Even with normal ultrasound, a patient can be cirrhotic, and in that case, FIB4, APRI, FibroScan ये हमें बताते हैं। And this is important कि over time हमने disease monitoring करनी है in terms of the CTP score and MED score। डिटेल में जाऊंगा नहीं, टाइम मुझे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन these are the essentials। And we know assets of complications: hepatic encephalopathy, variceal bleed, ascites, HCC, infections, coagulopathy, malnutrition और compensated liver का लेकिन अचानक decompensate होकर आ जाता है। मेडिसिन में गेस्ट्रो में that's the ACLF, and we know कि बहुत सारे complications like HE, variceal bleed, ascites, HCC and ACLF, they need transplant, otherwise patient is lost। लेकिन we know transplant it is available in Pakistan, लेकिन cost around 5-6 million, donor तमाम चीजें, तो it is available and not for everyone। To me every day more than 20 around 20 cirrhotics देखता हूँ, लेकिन शायद महीने में 1-2 रेफर कर सकता हूँ, they can't because of the affordability। What is this? ये मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। Anybody what is this? Camera, and this is a 360 degree camera। और ब्यूटी इसकी ये है कि आप जो आपको अच्छा नजर आ रहा है शायद ऐसा ना हो, जो आपको बुरा नजर आ रहा है ऐसा ना हो। आपको अगर पूरी पिक्चर देखेंगे इस कमरे में एक ही आप स्क्रीन में जब पूरा देख लेंगे, then will be aware कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे क्या ओरिएंटेशन है। The beauty of the 360 degree camera is कि आपको पूरा panoramic view बताता है in one screen। We all know that. This approach should be for the liver as well। क्या आप cirrhotic आपके पास आया, in one shot में आप देख लें ये काज क्या है, क्योंकि important है। जब तक cirrhotic patient का आप काज ascertain नहीं करेंगे, reason क्या है, you can't give the best care the patient needs। उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, CTP स्कोर क्या है, मेड स्कोर क्या है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है, कौन सी नहीं है, आया उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत है नहीं है, ये तमाम चीजें पहली, चाहे वो पहली दफा है चाहे वो बार बार आ रहे हैं। दिस इज द नीड कि आपका 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए। जब तक आपका 360 डिग्री अप्रोच नहीं होगा तब आप नहीं कह सकते कि मेरा पेशेंट विल लिव विदाउट द लिवर ट्रांसप्लांट। This is very very important। Well, पेशेंट आपके पास आता है, HE के साथ आया, ब्लीड के साथ आया, ascites के साथ आया, it's just tip of the iceberg। आपको जरा इसकी डीप जाना होगा, आपको डीप ड्राइव करनी होगी ताकि पता चले कि ये है क्या। और जब तक आप इस डिजीज के डीप में नहीं जाएंगे तब तक आप उस डिजीज को प्रॉपर समझ नहीं सकते। And what do I mean by that? We know it's a chronic liver disease। हमारा पेशेंट कहीं पे भी फॉल कर सकता है, मे बी इन द अर्ली chronic liver disease or in the advanced chronic liver disease। अब ना chronic liver disease is non-cirrhotic chronic liver disease, or advanced means cirrhosis, and we divide cirrhosis into two: compensated and then decompensated। And compensated has got two stages: compensated cirrhosis with no varices and no ascites, and compensated cirrhosis with varices but no ascites। जैसे ही उसने ब्लीड किया या उसको ascites डेवलप हुआ, वो शिफ्ट कर गया compensated से decompensated।
एक तो कलर कोडिंग याद रखिएगा, हम आगे स्लाइड में इसी को देखेंगे. Why we say this is the whole, we had the systemic hypertension, there is portal hypertension. In non-cirrhotic CLD, the portal pressure is less than 5. But जैसे ये exceed करता है more than 5, it's a cirrhotic patient. आपके compensated में ये 6 to 12 होगा. 6 to 10 is called insignificant. ये आपको relate कर पाएंगे ऊपर वाले चीजों के साथ. बेटा कहाँ पे है इसका वो? Sir, I will check. The second, Bali. Okay. We can just see this. In first phase 6 to 10, in the compensated second phase 11 to 12, and this is called clinically significant hypertension. जब ये 10 से क्रॉस करता है, varices develop होने शुरू हो जाते हैं. And when it crosses 12, varices bleed. This is important. Patient आपके पास आया, आपको देखना चाहिए. अब मेरे पास जो पेशेंट आ रहा था, उसका हाइपरटेंशन था 1990 में ब्लीड के साथ किया था more than 12. This is important, आपके ज़हन में होना चाहिए कि अंदर चल क्या रहा है. Platelets, very good indicator. If it's more than 150, you are here. If it's less than 150, you are here. ये हम डीप डाइव कर रहे हैं अपनी पेशेंट की, पैथोफिजियोलॉजी समझ रहे हैं. यहाँ तक ACLF हुआ, this HE आता है is because of the ACLF, acute and chronic liver failure. और इस फेज में HE होती है as a consequence of cirrhosis itself. इसको कोई precipitating factor नहीं चाहिए. ACLF में आपको कोई दूसरा इंसर्ट चाहिए होता है, acute and chronic liver failure. ठीक है? आगे चलते हैं. HCC is the risk in all phases, बस least here maximum है. ठीक है? मजीद आगे जाते हैं. तो मैं कह रहा था कि फाइब्रोसिस और फलाना फलाना फलाना, आजकल हम फाइब्रोसिस की बात करते हैं. इस पूरे एरिया में दिस इज F0 to F3, यहां से हो जाता है F4. अगर मजीद डेप्थ में जाएं, यहां तक F1 तक होता है आपका 5.5 से कम, F3 तक 5.6 से 12.5 आगे बढ़ जाता है. जैसे जैसे ज्यादा होता है, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फॉर फाइब्रोस के, और पता चल जाता है कि इसका पेशेंट्स का 25 है या 30 या 40 या 75 पे आ जाते हैं, कहते हैं दिस इज हाई रिस्क फॉर HCC, हाई रिस्क फॉर ऑल अदर कॉम्प्लिकेशंस. ओके, तो दिस वाज द वे कि अंदर स्टोरी क्या चल रही होती है कि आप इन नॉर्मल लिवर को सिरोटिक लिवर बना दें. इन शॉर्ट, नॉन सिरोटिक, कॉम्पेंसेटेड, डीकॉम्पेंसेटेड एंड स्टेज, ये 4 डिस्क्रीट क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस हैं. और आपने देखना है कि मेरा पेशेंट इस वक्त किस स्टेज में है. यू ऑल नो कि इस स्टेज में नॉर्मल लाइफ स्पेन, एसिम्प्टोमेटिक है, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, HCC का रिस्क है. कॉम्पेंसेटेड में 12 इयर्स तक आ जाता है, फाइब्रोसिस ली होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड होती है, रीजनेबल होती है, नॉट एज नॉर्मल लेकिन ओके. यस, डीकॉम्पेंसेट हुआ, सर्वाइवल ड्रॉप टू 2. मेरे पेशेंट ने भी डीकॉम्पेंसेशन पे प्रेजेंट किया था इन 1990. स्टिल इज अलाइव, 35 इयर्स. रीजन मोर देन 50 में काउंट कर रहा था, 50 तक तो काउंट किए, विजिकोटिनोरम जमास्टर, इवन उसकी एंडोस्कोपी हुई थी. सो जो चीज की तरफ लाने चाह रहा हूं, उसी तरफ जा रहे हैं कि तब आप सोच सकते हैं कि मेरा पेशेंट जिंदा रह पाएगा अगर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो, रेगुलर आता रहे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स एंड स्टेज में डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस हैपन, जे कुड उसको डीकम्पेंसेट कर लेते हैं. दिस इज एज द पेशेंट, दिस आर डेटा वी प्रेजेंटेड इन 2016 in Tokyo in Basel. This is first time presentation. ये मेरे पास सिरोटिक आए, it's a huge data, more than 2,700. और जो first term आया उसकी क्या कंडीशन थी? And you see, 77% they were because of hepatitis C. My those colleagues who deal in medicine or in gastro or in hepatology or in medicine, you see,
कि in Pakistan cirrhotic is HCV unless until proven otherwise. HPV बहुत कम, अगर बहुत ही कम, ये पॉइंट 53% child class A compensated and your intervention means a lot. पॉइंट ये है, दिस इज एट प्रेजेंटेशन. एक पेशेंट दोबारा की इस डेटा में नहीं आया, जो फर्स्ट टाइम आया, तो 53% ऑफ देम दे प्रेजेंट इज कॉम्पेंसेटेड. आपकी इंटरवेंशन मैटर करती है. मेरे पेशेंट में तो डीकॉम्पेंसेटेड आया था जो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन कॉम्पेंसेटेड, दिस इज गुड पॉइंट. यू शुड बी विजिलेंट एंड ऑफ कोर्स द मेल इज गुड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. एंड दिस वाज द कॉम्प्लिकेशन. इसके क्या क्या आता है और किस तरीके से आते हैं. Well, I'll just skip these two. पॉइंट पे आते हैं. ओके, जब भी ये पेशेंट प्रेजेंट करता है आपको एज एक्यूट इवेंट, चाहे एचई है, चाहे ब्लीड है, चाहे एक्यूटली कम्युनिकेटेड एसाइटिस है, एसीएलएफ है, एचआरएस है, व्हाटएवर इट इज, एक तो आपने प्राइमरी डीकम्पेंसेशन को ट्रीट करना है. मसलन एक पेशेंट ब्लीड के साथ आया, ऑफ कोर्स आपने ब्लीड को टारगेट करना है, लेकिन आपने सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को भी देखना है. ब्लीड के साथ पेशेंट एचई में चले जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, और टर्शियरी पे एसीएलएफ में, वो एसीएलएफ और एचआरएस और रीनल फेलियर में चले जाते हैं. तो आपको पेशेंट को एज होल लेना है. दैट्स द रीजन आई सेड कि आपको 360 डिग्री अप्रोच चाहिए. इन्हीं के जनाब पेशेंट आया हुआ है, आपने उसको ब्लड लगा दिया, गैस्ट्रो कॉल लिख दी, जी एंडोस्कोपी होगी, बेंडिंग होगी, उधर पे लाइव पेशेंट जो है फुल कोमा में है. बिकॉज वन कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू अनदर वन. ठीक है. सो अगर हम देखें तो एक्यूट इवेंट में आपको 3 एम होनी चाहिए: ट्रीट प्राइमरी डीकम्पेंसेशन, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन एंड टर्शियरी कॉम्प्लिकेशंस. और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आपने फ्यूचर इवेंट्स को बचाने के लिए सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस, प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस फॉर एचई, फॉर ब्लीड, फॉर ओसाइटिस, फॉर ऑल थिंग्स, ये आपने देने हैं. डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम अलाउ नहीं करेगा. अगर मैं समअप करूं कि किसी भी सिरोटिक पेशेंट्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते केयर के, तो वन इज अरेस्ट इन्फ्लेमेशन एंड ट्रीट etiology. एक्टिव हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, आपने इसको पीसीआर नेगेटिव करना है. और डिजीज है, ऑटोइम्यून है, हेमोक्रोमेटोसिस, व्हाटएवर, वो बिकॉज ऑफ द अल्कोहलिक है, वो चीज आपने करनी है. सेकंड, ट्राई करने के पेशेंट को चाहे क्लास ए ही में रखना है. जो एल्बुमिन कम हुआ, न्यूट्रिशन कम हुआ, बिलिरुबिन ज्यादा होता है, ये चीजें उसको चाहे क्लास बी में ले जाती हैं. उसको एचई हो गया, उसको एसाइटिस हो गई, आपने ट्राई करना है उसको चाहे क्लास ए ही में रखना है. थर्ड, इंश्योर डिजायरेबल न्यूट्रिशनल स्टेटस. खुदा के लिए ना करें कि जैसे सिरोटिक आता है, आई एम सॉरी टू से, हर बार से मरीज आता है, कंसल्टेंट से आते हैं, वखा को बिल्कुल बंद. आई डोंट नो वाले वखा बंद, वो बेचारा कर नहीं सकता, मसल्स उसके है नहीं, सार्कोपीनिया उसको है नहीं, और वो एचई में आते रहते हैं. एटलीस्ट H1 में तो सारे होते हैं, तो कोई वशा बंद नहीं है. इवन एचई में भी वशा बंद नहीं है. यस, लिमिट थोड़ा सा कम करना होता है. इसके बाद prompt and effective control of जो acute presentation होती है, avoid hepatotoxic drugs, surveillance for HCC and vaccination against hepatitis A, E और hepatitis B अगर HCV है, और influenza, ये तमाम चीजें आपने करनी है. And remember, it's a multidisciplinary approach. ऐसे मरीज को चाहिए होता है, ये याद रखिएगा. तो how to keep cirrhotic patients alive? Managing cirrhotic patients in the absence of liver transplant focuses on preventing complications, addressing the underlying cause and maintaining quality of life. ये components हैं जो strategies हैं: treat the underlying cause, prevent the and manage the complications, nutritional management, lifestyle modifications, managing coexisting conditions, and of course psychological and palliative support to these patients is very very important in close monitoring. इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, just skip all these कि आप अंडरलाइन काज को देखना है, उसको ट्रीट करना है, आपने जो मैनेज कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अपने अप्रोचेस हैं, वेरियस ब्लीड के, एसाइटिस के, एसबीपी के, इनकी डिटेल का टाइम नहीं गया, जस्ट स्किप ऑन दैट. आई विल गो टू माय द लास्ट स्लाइड्स, जो कि आई वांट कि जो है ना, जो 360 डिग्री का जो मेरा कॉन्सेप्ट है और हमेशा मैं चाहता हूँ. आई एम सॉरी, हम भूल जाते हैं. पेशेंट्स 3-4 कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेशन में बैठ जाते हैं और बाकी कॉम्प्लिकेशन किसी ने गौर ही नहीं किया होता. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या so by addressing the root cause,
preventing complications, and focusing on quality of life, many cirrhotic patients can live together in healthier lives even without a transplant. So to sum up, cirrhotics are a very, very delicate creature. उसको extra care चाहिए होता है. This is very important. जब तक आप उसको extra care देंगे, extra नहीं जाएंगे, तब तक आप cirrhotics patients को lose कर जाएंगे. तो in-time lose is very important. You must be clear about the clinical features, ultrasound, labs, regular monitoring is very important, prophylactic strategies are very important, preemptive decompensation is very important, properly trained, dedicated team is very important. Or MDT strategies are very, very important for these patients. So the take-home message is, this is the second last slide, liver cirrhosis is well-defined natural history. Cirrhotic patient must properly be monitored over time, like my patient. Decompensation must be preempted. Success lies in the team approach. And never forget to explain the disease and its expected course to patient and relatives. This is very, very important. My patient was doing DGMDA communication हो सकती हैं और शायद उस वक्त सादिक शाह साहब यंग थे उसने बड़ा ट्रेन किया हुआ था. He was very much trained on all those and to avoid the malnutrition in cirrhotic patient. Okay, just the last 1 minute. Sir, किसने मूवी देखी थी? Raise your hands. Okay, I'll raise my hand because मैंने बहुत बार देखी और ये सीन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मशहूर था. दूसरा कौन सा सीन था? डूबने वाला This one? ये था ना? किस को याद है ये सीन? और किस पे आप लोग सेंटी हुए थे? कौन सेंटी हुआ था इस सीन को देख के? कौन रोया था? All of us रोए थे ना? क्योंकि जो आपने देखा, जो हमने भी देखा, everybody agrees? अगर ये 360 डिग्री होता, yes? और ये पिक्चर होती, this was really, कौन रोता है? ये है कमाल आपकी 360 डिग्री का. जब आप 360 डिग्री की चीज को देखते हैं, आप रियल आपको नजर आता है जो रियल है. तो माय डियर कॉलीग्स, these were the lessons learned from my case. परसों आया उसकी तस्वीर बिल्कुल लेटेस्ट ही है. और रेगुलर मॉनिटरिंग, this is the only key to success to keep your patients alive in time troubleshooting and 360 degree approach for these patients. Thank you very much. I try कि आपकी परसेप्शन बन जाए कि अगर शर्त क्या है किसी भी cirrhotic patients को और ये good example 35 years really. Thank you very much. And I spent almost 8 minutes. मुझे allocated time. Now I'd like to wrap up the session with a short certificate distribution ceremony. I would like to invite Dr. Usman Khattak to the stage to please come and hand out the certificates. Dr. Muhammad Nawaz, if you could join us, the chairperson for today's session. Dr. Nawaz, if you could please stay on the stage. Sir, please stay. I would like Dr. Muhammad Nawaz Khan to please give the certificate to Dr. Usman Khattak. I'd like both of you to remain on stage to hand out the certificates to the respected speakers.
Dr. Javed Iqbal Farooqi, please come to the stage. That's good. That's okay. I'm going to pull it up. It should be 360 degree. And Dr. Tahir Ghaffar, please receive the certificate. Thank you, my dear. Thank you. I would request the guest to present a certificate to our moderator, Dr. Sangaji Arikam. Thank you, Professor. Thank you. So that wraps up today's session. I would like to thank the chairpersons, the speakers, and the participants for taking part. Thank you.